हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12th एनआईएस बोर्ड का जो है ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3। इसमें जो हम करेंगे आज डायनामिक सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पृथ्वी का गतिशील धरातल। ये टॉपिक कई मायने में कई क्लास के बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई में पढ़ते हो, चाहे एनआईएस बोर्ड में पढ़ते हो, चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे हो या बिहार बोर्ड के बच्चे, किसी भी बोर्ड के बच्चे हो। अगर उनके सिलेबस में डायनामिक सरफेस ऑफ द अर्थ है तो इसका मतलब ये टॉपिक उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। और अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए भी रहेगा क्योंकि ये आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में समझने का मौका मिलेगा, प्लस डिस्प्ले भी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में होगा, तो ये काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। लेकिन आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है तिरपान सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Today I have a most important chapter doing here a dynamic surface of the earth. There is a most important chapter. There is a most important topic arrive here, a concept of isostasis. There is a most important isostasis here. The term of isostasis is derived from to isotosis, a word, a Greek language meaning to state or beginning of balance. You already know and must be has seen that is a mountain have a many peak and the relatively greater heights. And similarly, the plateau and the plain have a flat surface and they have a moderate and lower height respectively. And the contrast is the oceans and the bed there is a trenches has a greater depth. There is a great difference of the height among these is a features, and you also know as that the earth is a rotating while the keeping the perfect balance among it is a various features. And thus our earth is a considered to be a isostatic equilibriums. There is a most important here, but here also important here example. The example is the most important. Suppose you are holding one stick each your both hand vertically with the varying of the height, say 5 and other 15, and you are moving in the particular direction. Do you have any difficult maintenance of balance in the congruence with your body as well as to stick together? Definitely, the smaller sticks will be easy to make a balance than to longer one. It is just because of their center of gravity. The center of gravity will a smaller sticks will be narrowed to your holding hand and compressions to be longer stick. In the same way, a smaller surface features like a plane and a more stable than the tall mountain. First topic here arrives there isostatic balance means a view of the air. There is the most important here. Early geologists is consider the density of different column, a plan, plateau, mountain, etc. to be that same. Another propose their idea of informal density with a varying of thickness. We know that the upper crust of the earth is made up to the lighter materials. There is the most important here. We know that is the upper crust of the earth is the made of the lighter material. In this is a layer of silica and the aluminum are found to the abundance, and it is known as the cell. There is already have discussed. It is a less denser than to the lower one. The early assumed to that is a silicaceous crust is a floating over to the sima means silica and magnesium and the lower dense layer. The crustal layer is the informal is a term of density with a varying of length of columns. Therefore, those columns are projecting down into the atmosphere depend upon to the proportion of their columns, and it is due to this is the reason that the root has a developed or the sima has been to displaced from below.
To prove this concept, Early took example of wooden block of various size and immersed them into the water. There is a figure is also important for see the next. All the block are the same density and they get immersed to the different in a proportion to their size. In the same way of higher a feature with a great higher seam on the surface of the earth have a deeper roots and where is short in length as a shorter roots is bent there. It is the concept of root which is standing there higher evolutions. He is of the opinion that there is a land mass and the floating like a boat is the substratum in the magnetical astrosphere. According to this concept, the roots bend the Mount Everest is would be a 8848x and the 8. There is a mean to the 70,784. There is 70,784 meters below their sea level. On this base, Early has been criticized and that is the root is not possible to be at such a great depth because the root is the materials will be melt due to higher temperature found at that depth. Here show the most important diagram here, illustrations of the concept Early isostasis. There is the most important here, the water level and the water level wooden to the piece of uniform density. And the second here, a condition of the isostasis based on the elements and the as homogeneous. There is the most important, the density is here 2.7 and the root also and sigmas density is present and potential platform also present on plant mountains, plateaus and sea level. There sea is the density as a 3.0. There is the most important diagram show in there. The next here is the isostatics balance. There is the most important here, isostatic balance view of the pattern. The pattern is considered is a land block of various heights to be different in terms of their density. The taller is the land mass has a lesser density and the smaller height of feature to be a denser. In other words, there is an inverse of the relationship between to the height and density. It is there is a higher is a column, density will be a lesser, and if there is a shorter column, the density is will be higher. Assumes there this is to be true to be accepted that all the block of different height get a compensated at a content or depth into the substrums, and in this is a line is a beginning or democrated and democrated is above which is there is a equal pressure with the varying two heights, and thus the Demno answered that root concept of Early and the accepted the concept of a level of compensations, and for providing his concept he took a number of metals bars of varying to density with the same weight and put them is into the mercury. There is a show in this figure the next concept. In this way to the form a line by the all those is a var which is gradually to be their level of is a compensations. There is the most important here. Here show the most important diagram experiment of the concept of the parda of the isostasis. Here is the most important here isostasis is the experiment here. The first here is the lines of the compensations here and mercuries, and there is a black shaded is a mercuries here present, and there is a lead is a very less than, and the iron is the more than to the leads, and there is antinomian there is iron is a more than. That a zinc is the less than for the antinomian. There is the most important so of here of pattern and isostasis experiment. There is the most concept here, and the illustration of the lithosphere of the black began to the compensations here are interior planes, plateaus, coastal plain, and the auspicious. There is the left of the composition here. There is the most important diagram show on there. Here show the difference in the view of the RS and path. There is the most important difference here. There is exam view, and the difference between to the view of the RS and the paths can be more clear be presented in the tabular form. There is the most important. The first here the view of the aerial there, and second view of the path. There is the informal density of crystals is the materials. There is view of aerials, and second here view of the path. The various density of crystal is a material here, and the first here is the varying the depth up to which is the root up and rate. There is the most important, and second the path here is the informal depth up to which is the crystals and materials reaches, and the next here is the deeper root below to the mountain and a smaller depth of plan.
And the second here, no root of formation but the level of the compensation. There is the most important here. The second, there is the most important here, a global isostatic adjustment. There is the most important C part here, a global isostatic adjustment. It is a quite appearance that there is a no complete isostatic balance over to the globes. And the earth is unstable. Endogenetics and force often disturbs the crystal balance. The regular earthquake and the volcanic eruptions along the particle belt do not significant any balance, but a short of adjustment is needed continually. There is the most important here, global static adjustment. There is a reason being a regular earthquake and volcanic expression along to the particle belt do not significant any balance, but is a short adjustment in the needed to continuously. Genetic force are there is a tectonic effect and the case of the imbalance on their surface, but is a nature is allowed try to the make on the isostatic adjustment with itself. Exogenetic force are tried to eliminate the difference on the surface of the earth, and it is this process they are peeling off and transporting down for of flank and place their depositing them. In the process of isostatic balance is the maintaining by the inherent of flowways of the material by subsidence at the place of deposition and a filament at the peeling of place. If there is a proportions to be a denudation. There is the most important denudation figure here show here. This diagram is a mechanism of isostatic adjustment. There is the most important. Show this diagram is a denudation of mountain range. The mountain range is showing the slope is rises here, and transportation is slanting here, and deposition also here, and subsidence is a backward of the earth, and the sigma and substrates and the flowways they are most important. They show a mechanism of isostatic adjustment in this diagram. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है भू संतुलन की अवधारणा। देखिए भू संतुलन की अवधारणा यानी आइसोस्टेसिस क्या होता है, इसका मतलब आइसोस्टेसिस जो है भू संतुलन शब्द है, ठीक है। और भू संतुलन का मतलब ही होता है कि धरती को ऐसा बनाया जाए जो कि एक संतुलन के रूप में जो है मान्यता मिली। तो यही बात यहाँ भू संतुलन की अवधारणा के अंतर्गत आया है। आइसोस्टेसिस जो होती है भू संतुलन शब्द जो है ग्रीक भाषा के जो है आइसोस्टेसिस से लिया गया है, यानी आप समझ सकते हो कि भू आइसोस्टेसिस जो है आइसोटोसिस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है संतुलन की स्थिति कि संतुलन कैसे किया जाए। आप जानते हैं और आपने देखा भी होगा कि पर्वत के बहुत शिखर से होते हैं और उनकी ऊंचाई भी अधिक होती है, और इसी तरह से जो है पठार का ऊपरी भाग सपाट होता है और मैदान समतल होते हैं और पठारों की ऊंचाई सामान्य जबकि मैदानों की बहुत कम होती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, आपने देखा भी है और जाना भी है कि अगर हम पर्वतों की बात करें तो काफ़ी ऊंची होती है, शिखर होती है, लेकिन मैदान जो होती है समतल होती है। अगर पठार की बात करें तो थोड़ा सपाट होता है। तो पठारों की ऊंचाई सामान्यतः जबकि मैदानों की बहुत कम होती है। इसके विपरीत समुद्री तलों और खाइयों की गहराई बहुत अधिक होती है, ठीक है। आपने देखा भी होगा कि समुद्र के तले जो होती है काफ़ी गहरी होती है और खाइयाँ भी बहुत बड़ी बड़ी गहरी होती है। इन सब उच्चवाचक ऊंचाई में बहुत ही अंतर देखने को मिलता है। और आप भी जानते भी हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर परिभ्रमण सदैव करती ही रहती है और उसने अपने विविध लक्षणों के संतुलन बना भी रखा है। अंत हमारी पृथ्वी की समस्थिति की जो है अवस्थाओं को माना जाता है, यानी पृथ्वी स्वयं ही अपने आप को बैलेंस करना जानती है, क्योंकि इसका एक फिनोमेनन होती है। जैसे हमारा शरीर जो है हर चीज़ों से पहले लड़ती है, अगर लड़ने में सक्षम नहीं होती है तब जाके ये हार मान जाती है। उसके पश्चात अगर हम इस बात को उदाहरण से समझे तो ये काफ़ी आसान रहेगा। मान लीजिए आप अपने दोनों हाथों में विभिन्न ऊंचाई जैसे कि 5 और 15 इंच की बाले लंबत टुकड़े सीधे पकड़े हुए एक निश्चित दिशा में जा रहे हैं, यानी एक 5 मीटर है और एक के 15 इंच है, यानी 5 इंच और 15 इंच की कोई भी वस्तु ले लीजिए, ठीक है, और लंबत टुकड़े को सीधे पकड़े हुए अपनी दिशा की ओर जा रहे हैं। क्या आपको अपने शरीर और उन दोनों टुकड़ों के सामने सामंजस्य बिठाने में कई कठिनाइयाँ होती है? तो आप निश्चित रूप से लंबे टुकड़े की अपेक्षा छोटे टुकड़े को जो है साथ संतुलन बनाए रखना आसान होगा। ऐसा गुरुत्व केंद्र के कारण ही होता है, यानी छोटे टुकड़े को आप बहुत आसानी से जो है बैलेंस कर पाओगे, लेकिन बड़े टुकड़ों को जो है बैलेंस करना थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम कर सकता है, ठीक है। चाहे जितने मर्जी इंच हो, इसका कोई मतलब नहीं। अगर कोई डंडा आप सिंपली ले लो, ठीक है, एक कोई अगर छोटा होगा तो उसको बैलेंस करना आसान होता है, लेकिन जो
भरा होता है उसको बैलेंस करना आपके लिए संभव नहीं रहता है। तो यही बात जो है यहाँ पर बताने की कोशिश किया जा रहा है कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा गुरुत्व केंद्र के कारण होता है। तो ये आप याद रखना कि ऐसा जो होता है गुरुत्व केंद्र के कारण होता है और लंबे टुकड़े की तुलना में छोटे टुकड़े के साथ गुरुत्व केंद्र आपके हाथ के अधिक पास होगा। यानी अगर छोटा टुकड़ा होगा वो बहुत काफ़ी पास होगा तो उसका गुरुत्वाकर्षण कम लगेंगे, लेकिन बड़े टुकड़े में गुरुत्वाकर्षण अधिक लगेगा तो उसको बैलेंस करना आपके लिए संभव नहीं रहेगा। इसी प्रकार से छोटे धरातली लक्षण जैसे मैदानी ऊंचे पर्वत की तुलना में अधिक स्थिर होते हैं। तो यही बात दर्शाना जो है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहता है, क्योंकि जरूरी भी है कि धरातली लक्षण जैसे मैदान ऊंचे पर्वत की तुलना में अधिक स्थिर होंगे। अगला टॉपिक आया भू संतुलन, यानी भू संतुलन है किसके रिगार्डिंग, एवरेज के विचार के अनुसार। तो एवरेज जो था उसका क्या विचारधारा था और उसने भू के संतुलन के विषय में क्या अपने विचारधारा रखे थे। तो देखा जाए भू वैज्ञानिक एवरेज ने विभिन्न स्तंभों जैसे पर्वत, पठार और मैदान आदि के घनत्व को एक जैसा माना था। यानी इसके जो एक्सपेरिमेंट थे बहुत इंपॉर्टेंट थे और इन्होंने एक बात पे साफ जोर दिया था कि जब पर्वत, पठार और मैदान इनके घनत्व जो होंगे एक जैसे होंगे। अंततः उसने विभिन्न मोटाइयों के साथ एक सामान्य घनत्व के विचार को काफ़ी सुलझाया था। और हम जानते हैं कि पृथ्वी के ऊपरी परत हल्के पदार्थ से बने होते हैं, यानी पृथ्वी के ऊपरी परत जो होते हैं हल्के पदार्थ से बने होते हैं और इस परत में जो है सिलिका और एल्युमिनियम भारी मात्रा में पाए जाते हैं, जिसको हम दूसरे चैप्टर में भी किए थे। अगर नहीं आपने देखा है तो उसको देख लेना कि कौन कौन से जो है एलिमेंट से जो है पृथ्वी का निर्माण हुआ है। तो ये बहुत काफ़ी उन्होंने इंपॉर्टेंट बात दिया था कि सिलिका और एल्युमिनियम भारी मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इसे जो है सियाल्स के नाम से भी जाना जाता है। और यानी सियाल्स का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म, यानी सिलिका को एक वर्ड लिया जाता है और यल का जो है 2 अक्षर लिया जाता है। तो इस तरह से जो है सियाल्स नाम दिया गया था और ये नीचे की परत से कम घनत्व वाली होती है। एरिस ने माना कि सियासिस से बनी भूपट्टी सीमा यानी सिलिका और मैग्नीशियम, अब सीमा का मतलब भी यही होता है सिलिका और मैग्नीशियम, नीचे की अधिक घनत्व वाली परत के रूप में थी। ठीक है, यानी ऊपर की तैर रही थी और भूपट्टी के परत का घनत्व एक समान था, जबकि इसके विभिन्न स्तंभों की ऊंचाई अलग अलग थी। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि भूपट्टी की परत का घनत्व एक सामान्य थी, जबकि इसके विभिन्न स्तंभों की ऊंचाई अलग अलग थी। इसलिए ये स्तंभ अपनी ऊंचाई के अनुपात में जो है दुर्बलता मंडल में धंसे हुए थे। ठीक है, यानी ये जो था दुर्बलता के कारण ये जो है अपने क्षेत्र में धंसे हुए थे और इसी कारणवश इसकी जड़ें विकसित हो गई अथवा नीचे गहराई में जो है सीमा विस्थापित हो गई। तो ये दोनों बात काफ़ी इंपॉर्टेंट था और काफ़ी जरूरी भी थी। इसी अवधारणा को सिद्ध करने के लिए एरिस ने विभिन्न आकारों के लकड़ियों के टुकड़े लिए और इन टुकड़ों को उन्होंने पानी में डुबो दिया। ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी अच्छी थी क्योंकि इसमें बहुत कुछ हमें समझने को मिला। ठीक है, छोटे टुकड़े के लिया उन्हें पानी में डुबाया दिया गया, सभी टुकड़े एक जैसे घनत्व के हैं और ये अपने आकार के अनुपात में विभिन्न विभिन्न गहराई तक पानी में डूबते हैं। इसी प्रकार के पृथ्वी के धरातल पर अधिक ऊंचाई वाले भूलक्षण उसी अनुपात में अधिक गहराई तक धंसे होते हैं, जबकि कम ऊंचाई वाले क्षणों को जो है जड़ें छोटी होती है। यह अधिक गहराई तक धंसी हुई जड़ें ही वो हैं जो अधिक ऊंचाई वाले भूभागों को स्थिर रखते हुए हैं। उनका विचार था कि भूभाग एक नाव की तरह यानी मैग्मा वाले दुर्बलता मंडल के अंततः सतह तक तैर रहे होते हैं और इस अवधारणा के अनुसार जो है माउंट एवरेस्ट की जो जड़ है समुद्री तल से जो है 70 से लेकर 784 मीटर नीचे होनी चाहिए। तो ये उन्होंने अनुमान लगाया था और इसी बेस पे उन्होंने क्या किया था 8848 इंटू 8 करके दिखा था, जिसमें 70,784 आया था। और ये एरिस की इसी बात को लेकर जो है आलोचना भी हुई है कि जड़ का इतनी गहराई पर रहना संभव नहीं है, क्योंकि इतनी गहराई पर विद्यमान जो है उच्च तापमान जड़ के पदार्थों को पिघला देता है। हमने पढ़ा भी था जो है दूसरे चैप्टर में कि जितने गहराई में आप जाइएगा वहाँ उतनी ही जो है तापमान अधिक होती है। ठीक है, तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इतनी गहराई पर विद्यमान उच्च तापमान जो है जड़ को पदार्थों को जो पिघला देगा और गला देगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, इसलिए जो है इतने नीचे तक जो है जड़ें नहीं जा पाती है। इसी बात को शो करने के लिए यहाँ पर जो है एरिस ने भू संतुलन की विचार का चित्र के द्वारा प्रकट करने की कोशिश किया था। आप देख सकते हो कि जल स्तर दिखाई गई है और जल स्तर के बाद जो है सामान्य घनत्व वाली लकड़ियों के टुकड़े को यहाँ पर दर्शाया गया है। और ये लकड़ी देख सकते हो कैसे किस बेस पे जो है सीढ़ीनुमा जो है यहाँ पर
अरेंजमेंट की गई है। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था एरिस की, ठीक है। दूसरे डायग्राम्स में भू संतुलन की स्थिति में एस होम्स और बीडीएल हेम्स पर आधारित थे, जिन्होंने दूसरे साइंटिस्ट ने इसको एक्सपेरिमेंट किया था। इसमें भी आप देख सकते हो कि पठार, पर्वत, मैदान, यानी यह घनत्व जो है 2.7 दर्शाया गया था, और मध्य द्वीपीय जो होती है चबूतरा, जिसको यहाँ पर दिखाया गया है। और जल स्तर भी आपको दिख रहा है, सागर निचले सतह पे दिख रहा है, और जहाँ सीमा जो है, और इसका जड़ें जो है इसी बेस तक यहाँ तो जाती है। तो ये डायग्राम भी बहुत कुछ जो है दोनों एक्सपेरिमेंट की तुलना करने के लिए पर्याप्त थी। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है भू संतुलन, यानी भू संतुलन जो है पैट के विचार। तो पैट ने अपनी क्या विचारधारा रखा था भू संतुलन के अंतर्गत? कहते हैं पैट ने विभिन्न ऊंचाइयों के जो है भूभागों के विभिन्न धनत्व का मान रखा था, और ऊंचे भूभागों का धनत्व कम है, जबकि कम ऊंचाई वाले भूभागों का अधिक होती है। दूसरे शब्दों में ऊंचाई और धनत्व में जो है विपरीत संबंध होते हैं। अगर कोई ऊंचाई स्तंभ है तो उसका जो है धनत्व कम ही होगा, और अगर कोई स्तंभ छोटा है तो उसका धनत्व अधिक होगा। इसको सही मानते हुए उन्होंने स्वीकार किया कि विभिन्न ऊंचाइयों के सभी स्तंभों को जो है क्षतिपूर्ति स्तर की एक निश्चित गहराई पर हो सकता है, और इस प्रकार के ये जो है सीमा रेखा खींच दी गई, जिसके ऊपर विभिन्न ऊंचाइयों का जो है सामान्य दबाव पड़ा। अंततः उसने एरी के आधार पर या जड़ अवधारणाओं को खारिज कर दिया, यानी इन्होंने जो था जड़ अवधारणाएं जो बताई गई थी पहले, उन सभी बातों को जो है यहाँ पर खारिज कर दिया गया। क्षतिपूरक सतह की जो है अवधारणाओं को स्वीकार किया गया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था। उसने अपनी अवधारणाओं को सिद्ध करने के लिए सामान्य भार वाली विभिन्न धनत्व की कुछ धातुओं को जो है छरों ली और उन्हें पारे में डाल दिया। जैसे कि हम चित्र में भी देखेंगे, इस प्रकार से इन छरों के द्वारा उन्होंने एक रेखा बना दी, जिसे उन्होंने क्षतिपूरक स्तर माना। देखिए, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बताई गई है कि उन्हें एरिस के आधार पर या जड़ अवधारणाओं को जो है उन्होंने साफ तौर पे जो है खारिज कर दिया, और उन्होंने क्षतिपूरक उत्तर की अवधारणाओं को जो है स्वीकार किया। और इसी पर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, जो कि एक्सपेरिमेंट यहाँ दिखाया गया है। यहाँ पर इस चित्र में आप देख सकते हो कि यहाँ भू संतुलन का जो है पैट के विचार का कई मानने में प्रयोग किया गया, जो कि बहुत ज़रूरी भी था। अगर आप देख सकते हो तो बहुत क्लियर है। इन्होंने पारा का जो है एक द्रव्य पूरक लिया, क्षतिपूरक सतह को दिखाने के लिए उन्होंने सीसा, लोहा, एल्टीना और जस्ता को जो है क्रमबद्ध किया। तो सीसा जो था बहुत लोअर कंडीशन में था, उसके बाद जो है लोहा थोड़ा अपर में चला गया, और एंटीमनी जो थी सबसे हाइयर था, और उससे कम जो था जस्ता। तो इसी बेस पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, जो भू संतुलन को जो है यहाँ पर साबित करता था। अगर हम स्थलीय टुकड़ों को क्षतिपूर्ति का चित्र के रूप में देखें, तो आप देख सकते हो कि यहाँ आंतरिक मैदान और पठार के बीच में जो है एक बहुत बड़ी सीमा रेखा खींची गई है, और तटीय मैदान और अपतट जो होती है बहुत छोटी क्षेत्र के रूप में दिखाया गया है। तो ये जो था पैट का सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो है भू संतुलन के जो है दिखाया गया, जो कि क्षतिपूर्ति के अंतर्गत आता था। यानी क्षतिपूर्ति के स्तर के विषय जो है इन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन करने की कोशिश किया, जो कि पहले एक्सपेरिमेंट को जो है नकार दिया गया। यहाँ पर जो आपके समक्ष आया है, एरी और पैट की विचारधाराओं के विभिन्नताओं को जो है सारणी के रूप में रखकर स्पष्ट किया जाने की कोशिश किया गया है। यानी दोनों में जो है अंतर देखने की कोशिश की गई है कि आखिर दोनों ने क्या विचारधारा रखा है। अगर हम एरी की विचारधाराओं की बात करें तो यहाँ पर साफ हो जाता है कि भूपट्टी के पदार्थों में एक सामान्य धनत्व थी, यानी भूपट्टी के पदार्थों में एक सामान्य धनत्व थी यानी डेंसिटी थी। लेकिन पैट के विचार के अनुसार भूपट्टी के पदार्थों के धनत्व में काफ़ी विभिन्नता होती है, यानी काफ़ी विभिन्नता पाई जाती है। दूसरी तरफ जो है एरी की विचारधारा ये थी कि विभिन्न गहराई जिस तक जड़ पहुंचती है, तो इस बात को इन्होंने काफ़ी अच्छी से बताई कि विभिन्न गहराई पर जिस तक जो है जड़ पहुंचती है। और पैट के विचारधाराओं के अनुसार ये बात साफ हो गया कि एक सामान्य गहराई जिस तक जो है भूपट्टी का पदार्थ पहुंचता है, वहीं तक जड़ भी मौजूद होती है। अब देखिए, दोनों की विचारधारा कई मानने में कई हद तक सही भी थी। पर्वतों के नीचे गहरी जड़ और मैदाने के नीचे छोटी जड़, ये एरिस की विचारधारा था।
यानी पर्वत के नीचे गहरी जड़ होती है और मैदान के नीचे छोटी जड़ होती है। तो एरिस ने इस बात को साफ शब्दों में कहने की कोशिश किया, लेकिन पैट की विचारधारा के अनुसार ये था किसी प्रकार की जड़ नहीं, परंतु क्षैतिज पूरक सदर का होना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तो ये दोनों बातों जो है काफ़ी मानने में जो है जड़ों की अवधारणाओं को प्रस्तुत करने के लिए जो है काफ़ी अच्छी विचारधाराओं में से एक थी। उसके पश्चात हमारे समक्ष है भूमंडलीय भू संतुलन सामंजस्य। यानी सामंजस्य क्या क्या अर्थ है? यह बिल्कुल स्पष्ट है कि पृथ्वी पर जो है पुण्य भू संतुलन नहीं है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पुण्य जो है भू संतुलन नहीं है। आपने देखा भी होगा कहीं पठारी क्षेत्र है तो कहीं जो है पर्वतीय क्षेत्र है तो कहीं समतल क्षेत्र है। तो इससे ये जाहिर होता है, साफ होता है कि भू संतुलन नहीं है। पृथ्वी पुण्य जो है भू संतुलन संभव नहीं है। पृथ्वी जो है अस्थिर है और आंतरिक शक्ति जो है अक्सर भूपट्टी के जो संतुलन को सदैव भंग करती रहती है। यानी आंतरिक शक्ति जितनी भी है सारे के सारे जो है भूपट्टी संतुलन को भंग कर देती है। एक निश्चित पेटी में जो है नियमित भूकंप और ज्वालामुखी जो है उद्भेदन असंतुलन को दर्शाती है। यानी भूकंप और ज्वालामुखी जो है असंतुलन को दर्शाने वाले कुछ एलिमेंट हैं। इसलिए लगातार एक प्रकार की जो है सामंजस्य की अवस्था बनी रहती है, यानी कन्फ्यूजन की अवस्था सदैव बनी रहती है। आंतरिक शक्ति और उसके जो है वितरणिक प्रभाव धरातल पर जो है संतुलन के कारण ही होती है। परंतु जो है अगर प्राकृतिक हमेशा जो है समस्थानिक सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास सदैव करती रहती है। बाहरी शक्ति पृथ्वी के धरातल पर आए और अंतरों को दूर करने का सदैव प्रयत्न करती रहती है, जो कि बहुत ज़रूरी है। और इस प्रक्रिया में ऊंचे भूभागों से जो है पदार्थों का कुड़च कर बहुत दूर ले जाकर निचले भागों में निक्षेपित कर देती है। यानी ये तो आपने सेकेंड चैप्टर में भी पढ़ा था कि जितने भी होते हैं सब के सब जो है कोई भी गड्ढा होता है उसको भरने की कोशिश करते हैं। तो यही बात यहाँ पर दर्शाया गया है कि खुरच कर बहुत दूर ले जाकर निचले भागों में निक्षेपित कर देती है। और इस प्रक्रिया में जो निक्षेपण के स्थान पर जो है नसाब द्वारा नीचे से पदार्थों के प्रभाव के कारण एवं खुरचने के स्थान पर अनाच्छादन के अनुपात में उत्थान और भूमंडलीय संतुलन बना रहता है। तो इस प्रकार जो भूमंडलीय संतुलन बनाने की सबसे इम्पोर्टेंट विधि है। अगर हम इसी बात को चित्र में देखें तो ये साफ हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं चित्र क्या है। यहाँ पर आप एक चित्र देख सकते हो जो भूमंडलीय संतुलन के जो सामंजस्य के तंत्र रचना के तंत्र को दर्शाता है। और इसमें साफ जो है करने की कोशिश किया गया। आप देख सकते हो कि पर्वतीय श्रेणी का अनाच्छादन आपको दिख रहा होगा, जिसको उत्थान के रूप में दिखाया गया है। देखिए कितना ये बड़ा जो है दिखा रहा है। उसके बाद उसमें परिवहन हो रही है, धीरे धीरे निक्षेपण हो रहा है, अवतलन जो हो रही है, सियोल हो रहा है, प्रभाव, सीमा, अधसतर। देखिए ये जो है काफ़ी विस्तृत है। अगर दोनों साइंटिस्टों की बात करें तो उनके भी काफ़ी हद तक विचारधारा सही था, लेकिन इस चित्र ने साफ कर दिया कि भूमंडलीय संतुलन की जो है सामंजस्य का एक रचना तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। और इसकी जो है संरचना ये साफ जाहिर करती है कि प्रवाह क्षेत्र तक जो है सभी के जरिए जाएगी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था। दोस्तों इसी के साथ हमारा ये टॉपिक जो था ख़त्म हो जाता है, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण था। ठीक है, आगे का टॉपिक जो है हम अगले वीडियो में करेंगे, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसको देखना मत भूलना। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना। साथ में दो बातें नहीं भूलनी है। पहली ये कि जितना हो सके इस वीडियो को जो है दूसरे बच्चे तक पहुंचाने में तिरपान स्टडी सेंटर का आपने हेल्प करना है। और दूसरी बात ये रहता है कि पहली बार अगर वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, भी आपके हित में रहेगा। तभी जो है आपको समय समय पे जो है तिरपान सेंटर द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन भी प्राप्त होगा और उसको आप अच्छे से समझ भी सकोगे। सब्सक्राइब करने का दूसरा फ़ायदा ये भी रहता है कि आपको जो है टॉपिक रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो टॉपिक रिसर्च कीजिएगा तो तिरपान सेंटर की जगह पर जो है दूसरे जो है यूट्यूब पे डले गए वीडियो ही आपको नज़र आएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेने से ये होगा कि आपको जो है इसका होम पेज मिल जाएगा, जहाँ पर आप कोई भी वीडियो जो है बहुत आसानी से देख सकते हो, समझ सकते हो और अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो।